Hello, we will start the first chapter of class 11 geography, 11th class. So first point, why we study geography, that's the basic question we ask. That's the main question we ask. Why we study geography? That's a very important component of social studies. Geography is a very important component of social studies. We already know we have so many subjects in social studies up to secondary stage. Up to class 10th we studied geography as a part of social studies. But now we have to study it separately. So we are aware of one thing, that aware of some phenomena which geographical nature will study in this, and geographical nature of world in different parts will study in it. Now we'll study geography as an independent subject in class 12th. We already know class 11th and 12th, it's a totally separate identity. It's almost an independent subject, we already know. Therefore, we are studying about it. So, what we learn in this geography, we will study geography as a physical environment. Whenever I'm talking about physical environment, I'm talking about landforms, I'm talking about soils, I'm talking about rivers and all. Whatever their physical environment exists in Earth, we will learn in this. And then we'll see human activities. A physical environment existing but no human activities are carried out in it, so there is no fun to study geography. So we'll study interactive relationship between physical environment and human activities. So otherwise we have a different subject of geography that exists in geography, that is human geography, that we will study in class 12th. So in this we have a total relationship which we are going to take in this subject. Then we have a very important question which can be raised in geography, that is why we should study geography. That's the main thing, why we opted subject geography, right? And which surface we are on earth we are living, that's again the question which can be raised, right? So that can be raised in this. So why we should study geography, that should be the question which should be asked again and again. Then we will see how our lives are mainly surrounded. By that. We have to depend on so many resources. Human being cannot survive alone. They need lot of resources. Why they need resources? To sustain themselves. अपने आप के गुजारे के लिए, अपने रख रखाव के लिए उसको ज़रूरत है. अपने सराउंडिंग एरिया में उसके साथ क्या हो रहा है, that also things has to be seen in this. Then we have to see primitive society. Now we have very advanced type of societies existing in it. We have so many society which exist on earth. Earlier society we call it as a primitive society. हम लोग उसको primitive society कहते थे, जो जंगलों में mainly रहती थी. Their main dependence is on forest. They are hunting, gathering. These are the main activities they carried out, right? And their main means of subsistence, अपने गुजारे के लिए चीज़ों को उगाना, right? So they used to have some edible plants which they get from forest. Then they hunt animals also. That type of things were existing. पहले ये सब कुछ होता था. लेकिन with the passage of time, lot of things has been advanced. अब बहुत सारी चीज़ें advance हो गई हैं. समय के साथ हमारी टेक्नोलॉजी आ गई है. With the passage of time, a lot of things has been changed now. Why the changes are there? Due to technologies, right? So what human beings started? They started producing foods, right? उन्होंने natural resources का इस्तेमाल करना शुरू किया, land का इस्तेमाल करना शुरू किया, और soil का इस्तेमाल करना शुरू किया, water का इस्तेमाल करना शुरू किया. So that's it. और हमने अपने food habits को भी काफ़ी adjust किया है environment के हिसाब से. Everyone cannot wear same clothing in every environment. If winters are there, you have to wear woolen clothes. If summer is there, you have to wear loosers, right? तो हमारी food habits and clothing is according to environment, right? So what type of weather is there, we have to wear according to that. So what we are doing, हम लोग अगर एक आदमी अफ्रीका से आता है और तो उसका क्लोथिंग, उसकी फूड हैबिट्स आर टोटली डिफरेंट. वी फाइंड लॉट ऑफ वेरिएशंस इन इट. बहुत सारी वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, राइट? एंड ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बहुत सारे टेक्निकलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुए हैं. हमने अपने आप को काफ़ी हद तक अडाप्ट भी किया है
वी ट्राई टू मॉडिफाई अवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू फिजिकल इन्वायरमेंट, जैसा इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने को मॉडिफाई करने की कोशिश भी की है, राइट। उसी हिसाब से हमारा कल्चरल डेवलपमेंट भी हुआ है। जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट है उस हिसाब से हमारा कल्चर सोसाइटी भी डेवलप होती है। तो ज्योग्राफी काफ़ी हद तक आपको तय करती है कि आपका कल्चरल इन्वायरमेंट कैसा होगा, आपका सोशल इन्वायरमेंट कैसा होगा। तो एज ए स्टूडेंट ऑफ ए ज्योग्राफी, बिकॉज यू आर in class 11th and you opted for geography, that's very important. As a student of geography you must be curious to know about all this phenomena, जो भी कुछ होता है अर्थ पर वो सब कुछ आप पढ़ने के लिए होगा, right? So we will study one by one in this. So you have studied about diverse lands. हम लोगों ने बहुत सारे diverse lands का छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा है, डिफरेंट फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा है, लोगों के बारे में पढ़ा है, right? So we are must be interested to understand the changes. अब क्या क्या changes आ रहे हैं that we are going to interested in it. We definitely interested in it. तो हम लोग देखना चाहेंगे कि टाइम के हिसाब से क्या क्या changes आए हैं, that we will study in this. Geography, mainly what geography give us. Geography हमें क्या देती है? Geography हम लोगों को equip करती है appreciate करने के लिए diversity को, because we learn lot of diversity. We have so many variations in India. If you take example, we have so much variation in India. We have so much diverse type of things out there. Geography हमें एक appreciate करती है diversity को और investigate करने के लिए force भी करती है कि आप खोजबीन भी करो उसकी causes, ऐसी diversity है तो क्यों है, why this all are responsible for that, why variation has been caused over time and space. That also we have to see in us. Then we have to develop our स्किल्स। हमको अगर ये चीज़ों को जानना है तो हमें कुछ स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। वाई? टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल कन्वर्टेड मैप्स, हमें मैप्स में देखना पड़ेगा और हमारे को विजुअल सेंस भी होगी, कुछ आंखों के सामने भी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो सके ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, वाई वी हैव टू स्टडी फॉर दैट टाइप ऑफ आंसर्स वी हैव टू गिव, राइट। सो ये अंडरस्टैंडिंग और ये स्किल्स मेनली हमारे पास न्यू टेक्निक्स आ गई हैं। Earlier it was not there. Now we have GIS, right? This is a new method to locate someone. GIS method लगाते हैं, इंडिया के पास पहले नहीं था, but we have developed GIS method. We have tried for computer cartography. Cartography क्या होती है? मैप को डिज़ाइन करना, right? Geography is a subject where we have so many maps. Then only you can contribute something to the national things. आप तभी देश के लिए कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई डाटा होगा, अगर आपके पास मैप्स होंगे, आपके पास सर्वे होगा, देन ओनली यू कैन थिंक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, अदरवाइज यू कैन नॉट थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच कैन बी रेज्ड इन ज्योग्राफी, दैट इज यू मे लाइक टू आस्क व्हाट इज ज्योग्राफी। आप ये भी देखना चाहेंगे ज्योग्राफी होती क्या है, राइट। ऑलरेडी यू नो दैट अर्थ इज अवर होम, आप सबको पता है कि अर्थ हमारा घर है, लेकिन it is home of so many other creatures also. Everywhere we find lot of different type of creatures existing, right? हमारे पास कई टाइप के characters भी हैं ऐसे. We have so many creatures, right? Whether when we pigs, we have small, we have mammals, we have reptiles, right? They also exist on Earth. और वो भी sustain करते हैं हमारे साथ. That's also very very important. तो आज यूनिफॉर्म नहीं है, अर्थ में बहुत सारी डाइवर्सिटी है। अगर आप बोलोगे अर्थ सब जगह एक जैसी है, इट्स नॉट पॉसिबल। वी हैव सो मच डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड, राइट। व्हाई दिस वेरिएशंस आर देयर ऑन अर्थ? ड्यू टू इट्स फिजिकल फीचर्स। समवेयर वी फाइंड सॉइल इज गुड, समवेयर वी फाइंड रिवर इज देयर, समवेयर वी फाइंड डेजर्ट इज देयर, समवेयर वी फाइंड कोल्ड डेजर्ट इज देयर। सो लॉट ऑफ वेरिएशंस एग्जिस्ट ऑन आवर अर्थ, राइट। Then we have so many mountains, hills, therefore variations are there. Therefore I told you this all name of all physical features, right? We have hills, we have valleys, we have plains, we have plateaus, we have oceans, lakes, deserts and forest area. That all exist in on our earth, right? So these variations which makes earth a very diverse type of things. This variation can be social also, this variation can be cultural also, right? There are so many villages, there can be small cities also, there roads are also there, railways also there, we have ports also, हमारे पास बंदरगाह भी है, वहाँ पर मार्केट्स भी हैं। ये सब किसने क्रिएट किए हैं? ये क्रिएटेड बाय ह्यूमन, राइट। सो दैट शोज अ कल्चरल डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी आने के बाद आपका कल्चर डेवलपमेंट भी होता है। तो हु हैज क्रिएटेड? सो व्हाट वी आर स्टडीइंग इन ज्योग्राफी, यू आर गेटिंग द आंसर, आई थिंक। सो मेनली
we are trying to have a relationship, we are trying to show relationship between physical environment and human environment, right? So this all variation give us mainly clue of relationship which I was telling you, right? Physical environment और social culture environment के बीच में जो relationship को दिखाने की कोशिश ज्योग्राफी करती है। इससे अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है जो आपको इतना क्लियरिटी में एक relationship समझाने की कोशिश करे। Then we have physical environment, mainly जैसा physical environment की बात की है, आपके पास lakes हैं, soil हैं, सब है। This is all called physical environment, right? That has provided a stage to us, हमारे सामने एक फिजिकल इन्वायरमेंट आपको चैलेंज देता है जिसमें ह्यूमन सोसाइटी आकर इनैक्ट करती है। वी आर जस्ट एक्टर्स विच वी आर प्लेइंग अवर रोल ऑन फिजिकल इन्वायरमेंट। सो वी आर प्लेइंग अ ड्रामा, राइट, विद अवर ओन स्किल्स। हम अपने स्किल्स के हिसाब से, अपने टूल्स के हिसाब से, अपने टेक्निक्स के हिसाब से, अपने इन्वेंशंस के हिसाब से एक नया कल्चर डेवलपमेंट कर देते हैं उस फिजिकल इन्वायरमेंट में। यू आर अंडरस्टैंडिंग? So physical environment is giving us a stage where we have to perform. So how we are performing by our own skills, by our own tools, by our own techniques, we are trying to do this. Then we are trying to attempt your answer of that question which has been posed. What is geography? So that type of thing, right? In simple words, if I say geography is nothing else but it's a description of earth, a journal for a general layman. If geography पूछी जाए क्या होती है geography, तो answer will be like that. But the term geography has been defined by different scholars. तो उनमें से एक scholar का नाम है जिनका नाम है Eratosthenes, right? So maximum words which has been derived in geography at this moment has been picked up from Latin or Greek. So Eratosthenes was a Greek scholar. ग्रीस एक देश का नाम है, राइट? इसका कैपिटल एथेंस है. So that also knowledge which I am imparting to you at this moment. So maximum word has been picked up from Greek words or Latin words. So Eratosthenes was born around 276 BC and 194 BC he died. The first time he coined the term geography, his name was Eratosthenes, right? So mainly geography is made up of from two words. Geography आपके दो words से बना हुआ है, geo and graphy, right? If we break geography into two parts, we have two main words, geo and graphos, right? So geo का मतलब होता है earth and graphos means description. So what it says, description of earth is called geography. So if we put together these two words together, so description of the earth. So geography means description of an earth. So that has been mentioned in there. So earth has always been a board जहाँ पे अर्थ ने हमेशा हमें जगह दी है, जहाँ पे आदमी रहता है. This is a board of humans. So many scholars try to explain, right? तो जोग्राफर्स ने कई तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करी है और someone has told description of earth, right? And where human being used to live. Human being का नाम आना ज़रूरी है because geography is nothing else because it is just interrelationship between man and physical environment that we are trying to explain in geography. So we are very much aware of the fact that reality is multifaceted. Reality में बहुत सारी चीज़ें हैं. Earth is also a multi-dimensional. उसमें एक रोल नहीं प्ले होता. We play a lot of roles on Earth. So that's it. That is why many disciplines have been there to help geography, right? So we are concerned with so many disciplines which we are there. From natural sciences we have picked up. We have taken a lot of things from geology and pedology, soil के बारे में पता करना, oceanography, ओशंस के बारे में पता करना. बॉटनी से हमने कई चीज़ें ली हैं बिकॉज बॉटनी डील्स विद प्लांट्स, ओके? तो हम लोगों को प्लांट लाइफ के बारे में पता होगा तभी ज्योग्राफी क्रिएट होगी. सो जूलॉजी, एनिमल लाइफ के बारे में पता लगना, मेट्रोलॉजी, राइट? सो वी हैव सो मेनी नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन्स विच आर आल्सो ए पार्ट ऑफ अ ज्योग्राफी विच इज इन सोशल साइंसेस, राइट? तो दैट इज आल्सो देयर विच यूज टू हेल्प ज्योग्राफी. सो वी आर टेकिंग लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम history, economics, sociology, political science, anthropology. So these all subjects used to help geography. Geography is not a
in subject in isolation. It is totally interdependent subject. So therefore I told you lot of subjects. साइंसेस के साथ भी इसका साथ लेना देना है, सोशल साइंसेस सब्जेक्ट के साथ भी है. तो इनमें सब सब्जेक्ट्स में मेनली हम सब एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ सरफेस को ही देखते हैं पहले. दैट वी गो थ्रू दैट, राइट. देन ज्योग्राफी इज मेनली डिफरेंट फ्रॉम अदर सोशल साइंसेस सब्जेक्ट्स. कैसे? इन सब्जेक्ट मैटर में हम लोग बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस से डिफरेंट है, हिस्ट्री से डिफरेंट है, इसका मेथडोलॉजी भी डिफरेंट है, राइट. बट सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट होने के बावजूद भी, मेथडोलॉजी डिफरेंट होने के बाद भी, इट इज़ ऑलवेज क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन्स. ये बहुत क्लोजली रिलेटेड है दूसरे सब्जेक्ट से. ज्योग्राफी मेनली ड्राइव्स डाटा. ज्योग्राफी जो डाटा है मेनली जो डाटा बेस है ज्योग्राफी का, डिटेल हमने लिया हुआ है, वो कई नेचुरल सब्जेक्ट से, साइंसी सब्जेक्ट से लिया हुआ है और सोशल साइंसेज से ले रखा है, सोशल साइंसेज सब्जेक्ट से भी ले रखा है, राइट. और अपने सब्जेक्ट्स को उन्होंने फॉर्मेट किया है ज्योग्राफी. Geography is not an isolated type of thing. They have picked up lot of things from other subjects, right? So we will see in this that we have so many variations on our earth surface. मैंने आपको पहले बोला there is so many dynamism on earth surface. बहुत सारी वेरिएशन है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है अर्थ सरफेस पे, राइट. फिजिकली की अगर हम देखें तो बहुत सारी डाइवर्सिटी, हर कॉन्टिनेंट, हर शहर, हर कंट्री एक जैसा नहीं है, उसमें बहुत सारी फिजिकल लैंडफॉर्म्स डिफरेंट है. वी हैव डिफरेंट कल्चर इन्वायरमेंट आल्सो. जैसा फिजिकल इन्वायरमेंट होगा वैसे ही कल्चर इन्वायरमेंट होगा, राइट. एक फिनलैंड का आदमी इंडिया के आदमी जैसे नहीं रह सकता, उसका स्टाइल, उसकी कल्चर डाइवर्सिटी विल बी डिफरेंट, राइट. सो कहीं आपके फिनोमेनास बहुत सिमिलर होते हैं और कहीं बहुत डिसिमिलर होते हैं. कहीं लोग एक जैसे दिखते हैं, कहीं अलग अलग भी दिखते हैं. सो दैट इज पॉसिबिलिटीज आते हैं. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी लॉजिकल टू परसीव ज्योग्राफी as a study of a real differentiation. तो स्टडी सिर्फ ज्योग्राफी एक सिंपल सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ स्टडी ऑफ अ डिफरेंशिएशन, राइट. बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों को लेके पढ़ते हैं हम ज्योग्राफी. देयरफॉर वी हैव सो मेनी सब सब्जेक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी. इट्स नॉट ज्योग्राफी में हम सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ते हैं. वी आर स्टडिंग सॉइल ज्योग्राफी, वी आर स्टडिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योग्राफी व्हिच आई विल टेल यू लेटर ऑन. फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. सो ज्योग्राफी मेनली वेरी करती है आपका टाइम के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से, राइट. ज्योग्राफी को हम परसीव बड़े डिफरेंट एंगल से करते हैं. इसको ज्योग्राफर्स मेनली नॉट स्टडी वेरिएशंस. यही नहीं है सिर्फ ज्योग्राफर का काम कि वो सिर्फ वेरिएशंस को पढ़ने की बात करें अर्थ सरफेस पे, लेकिन हम ये भी कोशिश करते हैं कि एसोसिएशन, एक जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरे कॉन्सेप्ट से कैसे एसोसिएट करता है, और कुछ ऐसे फैक्टर्स को पढ़ने की कोशिश भी करते हैं जो ये वेरिएशन लेकर आते हैं. अगर ये लैंडफॉर्म एग्जिस्ट है तो क्यों हुआ, कॉज पता करने की कोशिश हम ज्योग्राफी में करते हैं. तो ज्योग्राफी इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट व्हिच आई कंसिडर, राइट. सो मेनली अगर आपको एग्जांपल दिया है कि एसोसिएशन की कोशिश करते हैं कि एक चीज़ दूसरे से कैसे कनेक्टेड. जैसे क्रॉपिंग पैटर्न अगर हम लोग देखें वर्ल्ड में सबका सिमिलर नहीं है, रीजन टू रीजन डिफर्स. कहीं पे वीट उगती है, कहीं पे राइस उगती है, तो क्रॉपिंग पैटर्न्स आर वेरी डिफरेंट. सो व्हाई दिस वेरिएशन इज देयर, क्रॉपिंग पैटर्न में वेरिएशन क्यों है, राइट. मे बी देयर कैन बी सो मेनी रीजन व्हाई डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट एरियाज. द सॉइल कैन बी डिफरेंट इन दैट एरिया, क्लाइमेट कैन बी डिफरेंट इन दैट एरिया. मार्केट की डिमांड नहीं हो सकती. इफ आई आस्क द क्वेश्चन, राइस इज नॉट अ क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, because here people like to eat wheat, not rice, but here it is grown so much. Reason is market. So sometimes market also play a very important role, right? उसके बाद आपकी क्रॉप लगाने में फार्मर कितनी कैपेसिटी है, ये भी एक फैक्टर होता है, राइट. कितना पैसा लगा सकता है, कितनी टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स लेके आ सकता है उस क्रॉप के लिए. then only, so this all things has to be decided, then only we study all these factors in that. So that's mainly the concern of a geography. तो हम लोग geography का mainly concern कि आपको रिलेशनशिप बता करना पड़ेगा, आपको कारण ढूंढने पड़ेंगे. जैसे मैंने क्रॉपिंग पैटर्न में कारण बताया, आपको कई फैक्टर्स हैं उसमें, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सोशल फैक्टर्स भी हो सकते हैं. देयर कैन बी सो मेनी फैक्टर्स ऑफ दैट. फिजिकल फैक्टर्स आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू दैट. देन वी हैव टू स्टडी दैट रिलेशनशिप बिटवीन वन फिनोमेना टू अनदर फिनोमेना. कि आपके जो रिलेशनशिप हैं एक से ज़्यादा हैं या दो, राइट. तो जोग्राफर्स ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दिस फिनोमेना, द कॉज एंड इफेक्ट. अगर ये कॉज है तो उसका इफेक्ट ये होगा. सो दैट वी स्टडी इन जोग्राफी, मेनली वी ट्राई टू डू इट. सो मेनली ये जोग्राफर का काम
ये भी यही नहीं है कि इंटरप्रेट करना, बट आने वाले फ्यूचर में भी देखना। जोग्राफर्स इंटरप्रेट करेंगे ना, आने वाले टाइम में अर्थ ऐसी होगी, like what we are telling, Arctic Ocean is melting, glaciers of Arctic Oceans are melting almost. So after 2030 somewhere 2050 what will be the trend, Arctic Ocean में क्या होने वाला है? तो जोग्राफर्स पहले से डिसाइड कर लेते हैं, देन ओनली यू कैन प्लान फॉर फ्यूचर, अदरवाइज यू कैन नॉट प्लान। सो जोग्राफर्स का काम सिर्फ एक कॉज को ढूंढना नहीं होता, उसके बाद फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करना भी जोग्राफी का काम होता है। So geography में mainly we have both the concepts. We have physical concept also, we have human concept also. They are not static. Physical environment भी एक जैसा नहीं है. If you take Aravallis and Himalayas, Aravallis are old mountains in India. अगर आप Himalayas वगैरह को देखेंगे तो Aravallis are very old mountains. Himalayas are young old mountains, right? तो they are not static. Aravallis की इतनी हाइट थी, हिमालय से ज़्यादा थी एक टाइम। आज अरावलीज का सिचुएशन देखें, इट इज़ बाई इरोजनल एक्टिविटीज इट्स कमिंग डाउन डे बाई डे। राजस्थान विच आर नॉट हैविंग मानसून सो एक्टिवली अर्लियर, बट नाउ राजस्थान इज ऑल्सो फेसिंग ए कंडीशन ऑफ फ्लड्स। व्हाई इज इट पॉसिबल? ड्यू टू द हाइट ऑफ अरावलीज इज कम डाउन। सो बोथ द एलिमेंट, वेदर इट इज फिजिकल एलिमेंट, वेदर इट इज ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एस्पेक्ट, बोथ आर नॉट स्टैटिक, दे आर हाईली डायनेमिक। बहुत चेंज आता रहता है इसमें, राइट? दैट आल्सो स्टडी। तो ये चेंज टाइम के हिसाब से भी आ सकता है, राइट? तो ज्योग्राफी में जब भी हम पढ़ते हैं तो टाइम की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? इट कैन बी द कॉज ऑफ इंटरैक्टिव प्रोसेस, ह्यूमन बीइंग और फिजिकल चेंज के बीच में कोई इंटरैक्टिव प्रोसेस भी हो सकता है। दैट्स द रीजन वाई देयर इज ए चेंजिंग ऑन अर्थ। शहर डेवलप किए गए तो ह्यूमन एफर्ट से हुए ना, वहाँ पे एक फिजिकल इन्वायरमेंट होगा, उसके हिसाब से शहर को डेवलप करना। सो दिस इज कॉल्ड इंटरैक्टिव प्रोसेस। सो वी हैव टू स्टडी बोथ द थिंग्स टुगेदर। इंटर रिलेशनशिप को भी देखना पड़ेगा, तो आदमी ने कितना हद तक अपने कल्चर डेवलपमेंट को किया है, राइट? सो हाउ मच एक्टिव ह्यूमन बीइंग इज इन दैट एरिया एंड हाउ ही ट्राइज टू मॉडिफाई द एनवायरनमेंट, दैट आल्सो विल से। लेकिन अगर हम पहले सोसाइटीज़ को देखें, जिनको हम लोग प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का नाम देते हैं, तो हम लोग इनको प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का नाम देते हैं, जो ओल्ड सोसाइटीज़ होती हैं, तो दे आर प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटीज़, राइट? सो देयर dependence on environment is too much. Therefore there is a term which we call, when we have so much dependence on environment and nature influence human beings so much, that word is called determinism. तो हम उसको determinism का नाम भी देते हैं, हम उसे determinism भी बोलते हैं, right? So that's it. So primitive society totally depend on the immediate environment. जैसे आपका nature है उसके हिसाब से वो depend होता है। Geography mainly is a concern, अगर हम ज्योग्राफी को देखें तो इट इज स्टडी ऑफ नेचर और ह्यूमन इंटरेक्शन। नेचर, फिजिकल इन्वायरमेंट आपको कैसा मिला और ह्यूमन इंटरेक्शन कैसी हो रही है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड में नेचर को अलग पढ़ेंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन को अलग पढ़ेंगे। सो ह्यूमन इज़ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट। सो ज्योग्राफी में भी इट्स नॉट सेपरेट। सो ह्यूमन इज़ अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ द नेचर। सो नेचर पर आपके ह्यूमन के इम्प्रिंट्स, आदमी के काम दिखते हैं। Human being, how he played his role on nature, that also we study in geography, right? So nature is influenced by so many aspects of human life. It's not one factor which is responsible. So many factors influence nature. So that imprints can be noticed. हम human nature के imprints को कैसे देख सकते हैं? We can see these imprints of human being on nature through food, through clothing, through shelter, through occupation. तो हमारा खाने का स्टाइल, क्लोथिंग अपने हिसाब से हम उसको मॉडिफाई कर लेते हैं। शेल्टर कैसे हैं, किसी एरिया में कैसा शेल्टर है, कैसा ऑक्यूपेशन है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन ह्यूमन बीइंग। टेक्नोलॉजी कितनी आपकी एडवांस हुई है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो ह्यूमन बीइंग्स ट्राई टू हैव अ टर्म्स विद नेचर। नेचर के हिसाब से टर्म्स अपने सेटल किए हैं हमने, कि बहुत कहीं पे बैलेंस करके चले हैं, कहीं पे हमने आउटसोर्स भी करने की कोशिश करी है नेचर, राइट? ह्यूमन बीइंग ट्राई टू अडाप्ट इन नेचर और अपने आप को मॉडिफाई, नेचर को मॉडिफाई करने की कोशिश भी ह्यूमन बीइंग ने की है। सो ऑलरेडी अगर हम आज की प्रेजेंट सोसाइटी को देखें, वी ऑलरेडी क्रॉस द स्टेज ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी। हम लोग अब प्रिमिटिव सोसाइटी में नहीं है, पुरानी सोसाइटी में नहीं है। वी आर सो मच एडवांस। व्हाई सो मच एडवांस इज देयर? बिकॉज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इज देयर, राइट?
We are not totally dependent on nature as a primitive society used to be, right? अपने सस्टेंस के लिए हम पूरी तरह से फिजिकल एनवायरनमेंट पे ही आज डिपेंड नहीं होते हैं, राइट? व्हाई इज इट सो? बिकॉज प्रेजेंट सोसाइटी ने अपने आप को काफ़ी हद तक मॉडिफाई कर लिया है, right, due to technology, right? They try to modify it by inventing new and new things, new technologies we are inventing, right? So we expanded the horizon. हमने अपने horizon को काफ़ी आगे बढ़ा लिया, and by utilizing the resources properly, whatever the nature has given to us, so we try to expand our एरिया. ह्यूमन बीइंग हैज एक्सपैंडेड इट्स एरिया. तो अगर आपको फिजिकल एनवायरनमेंट ने कुछ अच्छी सॉइल दी है तो आप अच्छी खेती उस पर लगा रहे हैं. सब दैट टाइप ऑफ थिंग्स हैज बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, राइट? देन वी हैव ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. तो हम लोगों ने जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ इंसान का, टेक्नोलॉजी का, तो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप को इस शैकल से, जो फिजिकल इन्वायरमेंट हमको बैरियर दे रहा था, उससे हम काफ़ी हद तक पार हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. हम इस शैकल से काफ़ी पार आ चुके हैं. हु हैज़ हेल्प्ड अस फॉर दैट? हाउ वी कैन ओवरकम द ऑब्स्टिकल्स ऑफ नेचर with the help of technology, right? So technology tried to reduce the harness of labor. Earlier a person has to work so much, but physical environment has given so many challenges. लेकिन इंसान ने बहुत लेबर किया, राइट? और वो लेबर भी एफिशिएंट होना चाहिए. आपका जो लेबर है वो एफिशिएंसी भी दिखाना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, राइट? तो जब आदमी ने बहुत मेहनत करी तो हमें लीजर मिलेगा, हमें आराम का टाइम मिलेगा. Therefore we are enjoying the 21st century. We are enjoying so much. We are sitting at home, right? We have mobile phones, we are watching TVs, we can see world throughout. How it's possible? Due to technological advancement. Who has given all these things to us? Human being, right? So technology, what technology is providing us? That's providing leisure to us, fun, right? And therefore technology is trying to give us important thing for that, right? So mainly human beings try to इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. हमने अब जितना पहले प्रोडक्शन होता था, अगर आज से 50 साल पहले देखें, वीट का प्रोडक्शन बहुत कम होता था, लेकिन नाउ वी आर ऑन दैट स्टेज वेयर वी कैन प्रोड्यूस सो मच वीट दैट वी कैन टेक केयर ऑफ फॉर 5-6 years, right? So scale of production has been increased with the help of technology, right? And now the labor can be mobile, right? Migration is possible. Earlier laborers are not ready for migrating from one place to another, but now laborers are very much interested. They are moving, right? So बहुत सारे लोग आपके लगे हुए हैं, किसी एरिया में काम कर रहे हैं. So earlier labor was not mobile, but now labor is very much mobile. So we study interaction between physical environment and human beings, right? So that has been described by a poet in his following dialogue. Human being और physical environment में, और between human and nature God, because nature एक God जैसा ही एक्ट कर रहा है, because it's providing everything to us. भगवान से भी हम क्या मांगते हैं कि हम भगवान को चीज़ दे, तो नेचर ने आपको क्या दे रखा है? सब कुछ दे रखा है. तो what poets used to say, he told that you created the soil. आप भगवान, आपने हमें सॉइल दी, मैंने उससे कप बनाया, राइट? और उसके बाद आपने रात को क्रिएट किया, मैंने लैम्प क्रिएट कर दिया. अगर नेचर आपको ये सॉइल नहीं देते तो हाउ कैन यू क्रिएट कप? इफ नाइट विल नॉट बी देयर, हाउ कैन यू क्रिएट लैम्प, राइट? तो यू हैव गिवन अस, देयरफॉर वी आर एबल टू क्रिएट दिस, राइट? तो अगर आपने हमें वाइल्डनेस दी, हमें जंगल दिया, राइट, और हिली ट्रेन्स दिए, डेजर्ट्स दिए, तो मैंने वहाँ पर फ्लावर बेड्स को भी ग्रो किया, मैंने वहाँ पे गार्डन्स को भी क्रिएट किया. So such a nice, wonderful lines which has been given by a poet. So means what it is showing, that it is showing a relationship between both physical environment and they're trying to create both the things, right? एक interrelationship दिखाने की कोशिश इन दोनों में की है, right? So mainly if you see human beings ने अब claim भी किया, अपने contribution जो उन्होंने किया उस पर क्लेम भी किया, ठीक है? और अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी डेवलप करने की कोशिश करी हम लोगों ने. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट, नाउ ह्यूमन बीइंग्स कैन easily
मूव फ्रॉम स्टेज ऑफ नेसेसिटी. प्रिमिटिव सोसाइटी में अगर आप लोग देखोगे तो वी हैव स्टेज ऑफ नेसेसिटी, अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करते थे. बट नाउ वी आर रीच टू अ स्टेज वेयर वी गेट स्टेज ऑफ फ्रीडम. अब हमें पूरी आज़ादी है. वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. वी कैन जनरेट, वी कैन मॉडिफाई एनीथिंग वॉट एवर वी लाइक सो विद द हेल्प ऑफ technology, right? So all imprints have been there that has been created by human being. So new possibilities has been generated by human being. Now we are trying to collaborate with nature. हम nature के साथ balance बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं. We are trying to modify it. हम अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए भी उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हमने उसके साथ बहुत अच्छा collaborate भी किया, जैसे solar energy we are generating. So we are tying up whatever energy has been given by nature, so we are trying to have a relationship with that, right? So now we find humanized nature. तो human ने अपने हिसाब से nature को transform किया. That word has been there. Therefore now the society is humanized nature type of society. The nature has been modified. We try to collaborate. We try to adapt according to nature. That has been done in that. Right? Earlier the trend was when nature are dictating terms to human beings, but now we are giving some terms to that. So geography study both the relationship in this. We study both the relations. So I think your questions, the query of your question is very very clear about it. Now we have a space. आप लोगों की जगह जो होती है उसको हम स्पेस कह रहे हैं. That is mainly organized, right? Now if you want to go from one place to another, we have a very strong means of transportation, right? Therefore transportation is also known as arteries. Like how heart plays its role, important role, arteries, veins का जो बहुत important role होता है blood को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना. Same way our transportation is also doing same thing, right? So they are also very very important. Therefore means of transportation is also known as lifeline of any economy. So this is the last chapter in class 10th geography. You must have gone through, right? So this communication has been developed, right? So that's a very very important. So आदमी ने काफ़ी चैलेंज को पार किया है. Now we have so many links. हमने रूट्स को लिंक्स बोला है यहाँ पर, right? और कहीं कहीं पे हमारे बड़े इंपॉर्टेंट नोड्स होते हैं. नोड्स होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट. ट्रांसपोर्टेशन पे ये वर्ड यूज होता है नोड्स. ए वेरी स्पेसिफिक पॉइंट. फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन गो टू एनी साइड. दैट्स वे कॉल्ड नोड्स. सेटलमेंट्स बस गई हैं वहाँ पर. एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन में एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है. सो सम सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर दैट. You see Singapore. Why Singapore is a very small country, but how Singapore has developed, the reason is very clear. Due to this nodes, links, right? So that has been integrated. Our area has been integrated. We are the part of a global world now, right? So इसको हमने बहुत अच्छी तरह से organize किया है. So that's also the things which has been given in that. As a social science discipline, अगर हम लोग देखें इसमें social science को, में जोग्राफी को देखें तो हम लोग देखेंगे कि इट स्टडीज़ बोथ द थिंग्स. स्पेशल ऑर्गेनाइज की बात भी हम लोग इसमें करेंगे जोग्राफी में हम लोग, और स्पेशल इंटीग्रेशन की बात भी करेंगे. बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहा है और कई सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है. जोग्राफी ट्राइज टू इंटीग्रेट फिजिकल एनवायरनमेंट विद द ह्यूमन नेचर. दैट द रीजन वी विल स्टडी इन दिस. देयरफॉर द वर्ड special organization and special integration word has been used, right? So geography mainly is a discipline that tries to answer three type of main questions, right? Three set of questions. Some questions are mainly related to the identification, identify करना किसी चीज़ को, के natural और culture features को identify करना. तो जोग्राफी में हम पहला जो एस्पेक्ट है उसमें हम नेचुरल फीचर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं और कल्चर फीचर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उनके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं. जोग्राफी में पहले एस्पेक्ट को तो हम इस पर ऐसा पढ़ते हैं. और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन इज मेनली रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज.
आपके कैसे कैसे नेचुरल ह्यूमन कल्चर फीचर्स कहाँ कहाँ वर्ल्ड के किस किस पार्ट में हैं उसको पढ़ने की कोशिश हम लोग करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल ह्यूमन कल्चर फीचर्स को पढ़ने की कोशिश हम सरफेस ऑफ अर्थ पे करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो दैट वी स्टडी इन दिस। देन द थर्ड क्वेश्चन which we study in geography, that is where, but this question में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात तो करते हैं, वेयर कहाँ पर है और उसकी लोकेशन कहाँ पर है, और उसमें हम नेचुरल कंसेप्ट्स को भी देखते हैं और कल्चर फीचर्स को भी देखने की कोशिश करते हैं मेनली, राइट। देन वी हैव दीज क्वेश्चंस मेनली नीड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको बहुत सारा सर्वे, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, देन ओनली यू कैन। सो आई टोल्ड यू द लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ फीचर्स एंड वेयर दे लोकेटेड, दैट आल्सो हैज टू बी आंसर्ड इन दिस। इन सब का आंसर आपको देना पड़ेगा, राइट। सो देयरफॉर इट्स अ वेरी वेरी पॉपुलर अप्रोच। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, कहाँ पर कौन सी चीज़ लोकेटेड है, उसको कैसे करना। दैट हैज़ बीन डन इन ए colonial period. When I'm not talking about colonial period, I'm talking about when Europeans used to have colonies in different parts of the world, right? So these two questions, localized कहाँ पर है उसके बारे में, doesn't make geography a scientific discipline. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ पता करने से doesn't make geography a scientific subject. We have to add a lot of things, right? So up to some time, 3rd century के पास आते आते हम लोगों ने ट्राई किया इस क्वेश्चन को ऐड करने की, और भी क्वेश्चंस को ऐड करने की कोशिश हमने इसमें की ज्योग्राफी के। अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। आप ज्योग्राफी को बहुत एक स्मॉल सब्जेक्ट के रूप में डाल रहे हैं अगर सिर्फ आपको यही लोकेशन ही पता करने है तो। सो थर्ड क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू एक्सप्लेनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। आपको रिलेशनशिप क्यों है, कॉज एंड इफेक्ट फैक्टर को देखना पड़ेगा। These features has to be discussed in this. So that type of process and phenomena which has to be discussed in it. तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, right? So mainly if you see this aspect of geography, अगर हम लोग देखें तो that is related to question why this thing happened. Himalayas अगर Yangfold mountain है, why Himalayas are Yangfold mountain. So geography as a discipline, geography as a subject related to where it is, but we have to discuss special characteristics of geography also. That also we have to study in geography. तो हमें ये भी देखना पड़ेगा geography में, सिर्फ ये नहीं देखना लोकलाइज वाला नहीं है, हमें इसमें स्टडी तो करना है पैटर्न्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ कहाँ पर कोई चीज़ है ये तो देखना है, उसकी लोकेशन भी देखनी है, उसका कंसंट्रेशन भी देखना है, लेकिन हमें ये भी इंटरप्रेट करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देना है। इफ़ दिस थिंग इज देयर इन दैट एरिया, व्हाई इज इट सो। अगर ये व्हीट उगती है नॉर्थ इंडिया में तो क्यों उगती है, अगर राइस उगती है नॉर्थ ईस्ट में बंगाल में उगती है तो क्यों उगती है। तो दैट टाइप ऑफ आंसर्स आल्सो वी हैव टू गिव। दिस इज अ थर्ड पार्ट एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी व्हिच वी स्टडी इन ज्योग्राफी। देन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द नोट ऑफ एसोसिएशंस। आपको मैंने पहले भी बोला था ज्योग्राफी इज एसोसिएटेड विद सो मेनी सब्जेक्ट्स, इट स्टडीज सो मेनी इंटररिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, राइट। तो ये मैंने आपको पहले भी बोलने की कोशिश करी थी, राइट। स्पेस में और टाइम के साथ, और इन आंसर्स को आंसर्स देने की, एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश भी इन पैटर्न्स को करने की कोशिश ज्योग्राफी मेनली करता है, राइट। सो मेनली यू हैव टू सी दिस एसोसिएशंस एंड इंटररिलेशनशिप फिजिकल एनवायरनमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच में। दिस इज अ वेरी कॉल्ड डायनेमिक इंट्रैक्शन, क्योंकि बोथ फैक्टर्स आर डायनेमिक। फिजिकल एनवायरनमेंट भी डायनेमिक है आपका, इट इज़ नॉट स्टेबल। ऐसे ह्यूमन बीइंग इज आल्सो नॉट स्टेबल, इट्स डायनेमिक, राइट। सो ह्यूमन बीइंग्स और फिजिकल एनवायरनमेंट गोज ऑन चेंजिंग। तो स्टडी ज्योग्राफी को एक डायनेमिक इंटररिलेशनशिप को देखना पड़ेगा, ज्योग्राफी इनके बारे में पढ़ती है। नाउ subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.